इंटरव्यू मेरे साथ बहुत गुस्सा हो गया था कि मैं ओवरवेट हूँ और मतलब यू आर नॉट फिजिकली फिट टू जॉइन डिफेंस, इस तरह से बोला गया था। तो मैं तब स्माइल कर दिया था एंड आई वाज लाइक आई सेड दैट वट एवर फिटनेस एंड वट एवर हाउ बल्जी आई एम is just and joint efforts of my mother and I would say lockdown। सर भी इंटरव्यूअर सर भी हंसने लगे और he also enjoyed my answer। Good afternoon friends, my name is Prathamesh P. Sawan. I am from Belgaum, Karnataka. Recently I got recommended from 2AFSB Mysore. This was my 8th attempt. Previously I went for 4 conference and 3 screen out and then 1 recommended. As I'm working, I was searching for a platform which could help me with my work so that I can practice well and get nurtured very well. So when I did it, I got to know about, I was searching for a platform on YouTube. I got to know about TDF, Target Defense Forces, where I understood how they do, how they teach and how the times are flexible. I went through all the reviews and also some of the videos which were being put up by Vivek sir, also by the students' videos where also motivated me to join TDF. And I called him and told about my working hours. I discussed with him like what times he will use and what platform he will use. I was very happy that he was using WhatsApp, which was a regular platform which I move on, and also the time he used to give me a personal time, a personal call and all. So that was there. We got very good opportunity for practicing psychology. Then also I can say some of the parts of GPE. Also in multiple interviews were being taken up, and also everyday lecturates were there and group discussions were there. So that was a very good part why I searched and joined TDF. And finally I made many changes whatever were required to be an officer, so that all qualities whatever were missing in me or were hidden in me was being polished and taken up by sir. So that's the thing I want to tell. जब मैंने सर से बात की थी फ़ोन पे, तब सर ने बोला था कि यू कैन टेक अप अ डेमो क्लास एंड सी हाउ इट विल रन फॉर यू. Then I went for one class. It was like morning 5 o'clock. He showed me some psychological tests, one TAT, 5 to 6 SRTs and 5 to 6 WATs. And when I did that, I got a call from him, and we discussed on it. And when we discussed, he gave me many tricks, many things what were missing in that story, and how to make it practical, how to transform my WATs and TAT as well as SRTs according to the requirement and what are the requirements. So ये सब कर लिया था मैंने. उसके बाद जब मेरा ये साइकोलॉजी का हो गया, तब एक चीज़ थी कि अगर हम लोग लेक्चरेट, जो दिन का लेक्चरेट टॉपिक जो दिया जाता है, उसे अगर हम सबमिट नहीं कर रहे तो हमें वी विल नॉट गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, ऐसा था. So for that reason, it was mandatory to take out some time and put it in the group. And the group was very good. Like it was a WhatsApp group where all the informations were coming. तो एक चीज़ होती थी कि whenever हम लोगों को टाइम मिलता था, हम लोग ऐसे स्क्रॉल कर दिया तो बहुत सारों का आ जाता था. सो वी कैन गेट मैनी व्यूज. क्योंकि मेरा व्यू अलग हुआ करता था, किसी और का अलग हुआ करता था. तो लेक्चरेट में एक टॉपिक पे मुझे बहुत सारे नॉलेज एंड वे दे आर स्पीकिंग, ये सब मुझे पता चलता था. तो दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था रात को कि मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ. तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर दिया
and then it was like every day I used to get different things like हमारे बहुत सारे क्लासेस होते थे, जैसे कि every day नॉर्मल टैट वैट SRTs होती थी, लेकिन उसके बाद every weekly we used to have a full battery test, like जैसे SSB में हुआ करती है 3 घंटे, मतलब 2.5 से 3 घंटे का जो टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट हुआ करता है, SD हुआ करता है, वैसे ही सेम SD साइकोलॉजी हमें हुआ करता था। तो उसके बाद हम लोगों को वो सबमिट करना होता था, तो उसमें से SD हो या कुछ पार्ट्स हो हम सर के साथ डिस्कस कर पाते थे। तो उसके वजह से I was able to understand what was going in a process। तो धीरे धीरे मैंने अपना SD भी सर के साथ बैठ के डिस्कस करके कंप्लीट किया था। तो दैट इज द रीजन व्हाट आई डिड। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बहुत सारे इंटरव्यू लिए गए थे मेरे, और मेरा GTO में भी GPE जिस तरह से बनाया जाता है वो बताया गया था कि कौन सा तरीका होता है GPE लिखने का, ये सब सर ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था। और इंटरव्यूज में भी पहले से सर ने क्वेश्चंस बोले गए थे मुझे कि ये क्वेश्चंस आने वाले, तो एक बार मैंने वो क्वेश्चन सर ने बोला था कि रिपीटेडली कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लो। तब मैंने अपने लाइफ के बारे में जब PIQ लिखा था सर को फॉरवर्ड कर दिया था, तो पूरा का पूरा PIQ मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद कितने सारे क्वेश्चंस एक PIQ में एक के साथ कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वह उतने सारे क्वेश्चंस सर ने बोले थे मुझे। तो उसके बाद जैसे SSB में इंटरव्यू हुआ जाता है, वैसा मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरव्यू हुआ गए थे, बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे। मैंने तो धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस भी उस इंटरव्यू में मैं बदलता गया और अपनी तरह से डायरेक्ट करता गया इंटरव्यूज, ताकि दैट मे टर्न गुड इन दिस। और उसका रिफ्लेक्शन मुझे मेरा इससे पहले वाला अटेम्प्ट जो विशाखापट्टनम में हुआ था उसमें ही दिख गया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से गया है और मेरा साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से गया है। यहाँ पर GTO में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जो मैंने अपने एयरफोर्स के अटेम्प्ट में मैंने कर ही दिया था। जैसे कि मैसूर में मैंने तीनों जितने भी दिए थे मैंने इतना परफेक्ट दिया था कि मुझे वो लोग रिजेक्ट करने का मैंने कुछ रखा ही नहीं था, कि मुझे जो कुछ भी देना है मुझे परफेक्ट देना है। दैट वाज सेड बाय सर। लाइक मैंने जब फर्स्ट डे स्क्रीनिंग जब दिया था, मैंने स्क्रीनिंग को ही पूरा तोड़ दिया था 3 हिस्सों में, और जैसे ही मैंने स्क्रीनिंग को तोड़ दिया था मुझे स्क्रीनिंग में ही पता चला था कि आई एम गिविंग वेरी गुड अटेम्प्ट दिस टाइम। जो स्क्रीनिंग में होने के बाद मैंने सर को कॉल किया था, सर ने बस मुझे बोला था कि एंजॉय द एवरी स्टेप इनसाइड द प्रोसेस। सो मैं भी वैसे ही करता गया और हर स्टेप को एग्जाम की तरह नहीं, एक लाइफ का सबसेट की तरह देखता गया, और मैंने बहुत आसानी से बिना समझे मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया था कि even assessors were very happy with me and my performance। इस बार का SSB मेरा किस तरह से था और किस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया था, यही एक की है दैट आई कैन शेयर विद यू ऑल। जैसे कि इस बार मैंने स्क्रीनिंग में जैसे मैं स्क्रीनिंग के लिए गया, वहां पे मैंने स्क्रीनिंग को तोड़ दिया था 4 हिस्सों में। For me, screening was not a whole as a screening. It was like first OAR, then comes the writing, like story writing, then narration, and then group discussion। और यही मुझे सिखाया गया था टारगेट डिफेंस फोर्सेस में। और वहाँ पे जैसे मेरे लास्ट 10 days में देयर वेर लाइक मोर सेशंस, around 10 sessions we had, like PP and DT were taken with different groups। I was put in different groups where many people were repeaters, freshers। like मैं हर ग्रुप में मैंने ट्रायल दिया था, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया था। और वहां पे जाने के बाद मैंने ऐसा किया था कि 1 shot at a time for screening was my attempt। तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग को कभी लाइटली नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज इस टाइम जब कोरोना का टाइम है, जब उनके पास भी कम ही लोगों को लेना है, तो आपको इस तरह से परफॉर्म करना है कि ताकि आपका जो क्वालिटी है वो आपको 5 दिन दिखाने की भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो पहले दिन ही इतना परफेक्ट रहना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस
और परसिवरेंस भी है और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात कर रहे हो, जब आप अपनी तरह से बता रहे हो, किस एथिक्स में बता रहे हो और किस तरह से स्टोरी बना रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मेरा प्रैक्टिस के वजह से आई वुड से दैट TDF ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ग्रूम किया था उसमें, और मैं श्योर था कि मुझे इस बार मैं आराम से स्क्रीन इन हो जाऊंगा। और मैं प्रीवियसली इसके पहले भी जब TDF से ज्वाइन था और मैं पहले भी अटेम्प्ट दिया था 10 days प्रायर विशाखापट्टनम, वहां पर भी मैं इजीली स्क्रीन इन हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस व्हाट आई डिड एंड द वे द स्टोरी आई वाज राइटिंग, जो मुझे कॉन्फिडेंटली नरेट करने में इजी पड़ रहा था। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ। जैसे मैंने स्क्रीन इन हो गया था मैं, तब मैंने सर को कॉल किया था, तो सर ने बोला था कि नाउ यू आर डन विथ योर फर्स्ट थिंग, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर परफॉर्मेंस इनसाइड एंड इन ग्रुप ऑल्सो, हाउ शुड आई परफॉर्म एंड विथ साइकोलॉजी ऑल्सो एंड विथ इंटरव्यू ऑल्सो, एंड आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट। उन्होंने मुझे मोराल मेरा बूस्ट किया था बता के कि दिस ऑल थिंग्स आई हैव टू डू, एंड आई स्पोक विथ हिम। तब उन्होंने बोला था कि इसको एक टेस्ट की तरह ना देखना, इसको एक नॉर्मल प्रोसीजर की, लाइफ के प्रोसीजर की तरह देख, और उसको परफॉर्मेंस अपना बहुत कामली, कूल एंड कंपोजली देना, ताकि कहीं पे भी कुछ गलती ना हो। अगर गलती भी हो रही है तो ओके, दैट थिंग आई विल कीप इट देयर, आगे का सोचूंगा मैं। तो यही चीज मैंने सोची थी। तो जैसे ही मैं साइकोलॉजी टेस्ट देने गया था दूसरे दिन, तो साइकोलॉजी में मेरा एक था कि मुझे अब जो दिख रहा है वही लिखना है, मुझे प्रैक्टिकल स्टोरीज बनानी है। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्री कंसीव्ड माइंड से जाऊंगा, लेकिन एक चीज थी कि मैंने जितना प्रैक्टिस किया था उसके वजह से मेरे पास बहुत सारे थीम्स थे। तो मेरा एक ही चीज था कि मैं बैकग्राउंड देखूं, जैसे मैं बैकग्राउंड देखूं मुझे समझ आता था कि हाँ ये वाला मैंने जो प्रैक्टिस किया था ये समवॉट सिमिलर है उस तरह, और मैं ये वाला बैकग्राउंड ले सकता हूँ और इसमें से ऐसे ऐसे मेरे हीरो को इस तरह से प्रैक्टिकली जो इंसान बना सकता है। और मैंने हर एक पिक्चर में मैं क्या कर रहा था, खुद को डाल रहा था, या अगर वो पिक्चर में अगर मेरे एज का नहीं है तो मेरे रिलेटिव्स हो या मेरे पेरेंट्स हो या मेरे कलीग्स हो या एम्प्लॉयज हो, उनको सेट कर रहा था वहां पे और मैं लिख रहा था। और एक चीज मैं आपको एक ट्रिक की तरह भी बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप SSB में एंटर होते हो, स्क्रीन इन होते हो, जैसे आपको एक बलेट या आपको एक रूम अलॉट किया जाता है, गो देयर, अंडरस्टैंड पीपल, मेक फ्रेंड्स विद देम। जैसे आप फ्रेंड्स बनते हो, आप नाम शेयर करते हो, उनके साथ जलप हो जाना। जैसे आप जलप हो जाते हो ना, तो उनके नाम जो है ना वो उनको यूटिलाइज कर देना अपने साइकोलॉजी में वाइल राइटिंग स्टोरीज। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, एक लोग राम शाम ऐसे फलाना लिख देते हैं, लेकिन वहां पे कैसे होता है, आपको देखो कि आपने अपने दोस्तों के नाम लिखे हैं, प्लस मैंने क्या किया था, अपने पर्सनल जितने भी दोस्त हैं उनके नाम लिखे थे, और जो मेरे साथ मिले थे 4-5 लोग मुझे मिले थे वहां पे, जो मेरे आजू बाजू के चेस नंबर्स थे, मैंने उनके लिख दिए। तो यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया कर दिया था कि मैं सोशल अडेप्टेबिलिटी में आ गया था। तो मेरे पास पता था कि मुझे 15 क्वालिटीज दिखाने हैं, बिकॉज सबके पास वो 15 क्वालिटीज है, लेकिन उसको किस तरह से फीचर किया जाना चाहिए वहां पे, उसको ट्रिक किया जा सकता है। तो ये वाला एक ट्रिक आप ध्यान रख लेना, और ये आप ध्यान से कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है इसे करने के लिए। तो साइकोलॉजी में मैंने जैसे ये स्टोरीज लिख दी थी, 12 स्टोरीज, तो 12 स्टोरी प्लेन स्टोरी लिखनी थी मुझे। मैंने प्रिपेयर नहीं था मैं 12 स्टोरी के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक था जो सर ने भी बोला था कि प्रैक्टिकल स्टोरी रहनी चाहिए, और मैंने जो एक्सपीरियंस की हुई और मेरे मैच्योरिटी के लेवल पे, तो मैं हर एक स्टोरी में जब लिख रहा था तब भी अपनी मैच्योरिटी जान रहा था। जैसे कि मैं एक वर्किंग एम्प्लॉयर हूँ, जहाँ पे मुझे कैसे एम्प्लॉय की लाइफ कैसी होती है, मुझे जब कभी भी मैं देखता हूँ किसी को, तो मेरा व्यू क्या रहेगा। जब मेरे एक लड़का और लड़की है तो मेरे लिए वो कलीग्स हो सकते हैं, मैं वहां पे प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, ना कि मैं छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट बना दूं कॉलेज आवर्स का। तो यहाँ पे मुझे अपनी मैच्योरिटी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने जो लाइफ देखी है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा था, जैसे सर से मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले ही TDF में, तब मैं वो हर एक स्टोरी को मैं
अपने मैच्योरिटी पे लिखने की कोशिश करता था, और सर के साथ भी मैं हर एक वे डिस्कस करता था कि किस तरह से हो सकती है स्टोरी मेरे मैच्योरिटी के लेवल पे अगर मैं दिख रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारी एनसीसी की भी स्टोरीज आई थी जहाँ पे यूनिफॉर्म दिख रहा था, तो वहां पे मैं एनसीसी के साथ ही जा रहा था, लेकिन उसे कॉलेज बॉय दिखा रहा था जो अप्रॉक्सली मेरे एज का हो जाए। तो वहां पे मैं क्या कर रहा था, मैं सैग्रीगेट करके वो बहुत अच्छी स्टोरी बना रहा था विद ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। लाइक मेरे दिमाग, मतलब मेरे एज का लड़का, मेरे दिमाग जैसा लड़का क्या कर सकता है, कि क्या प्रैक्टिकली थिंग्स ला सकता है, कैसे अरेंज कर सकता है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये सब मैं ध्यान रख के लिख रहा था। और मुझे वो 4 मिनट्स वेर वेरी कंफर्टेबली आई वॉज एबल टू राइट, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। तो उसके बाद वैट भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस वैट किए थे। हमारे कंप्लीट बैटरी टेस्ट जो हर संडे होता था, उसके साथ मुझे वो टाइम मैनेजमेंट आ गया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैं क्वालिटी अटेम्प्ट लिख रहा था, बिकॉज कि एवरी डे आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई वॉज डिस्कसिंग विद सर कि क्या मैच्योरिटी मेरी होनी चाहिए। तो वहां पे मुझे क्वालिटी अटेम्प्ट मिल रहा था। उसके बाद मैं जब SRT लिखने गया था, तब मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे क्वालिटी अटेम्प्ट लिखने और स्पीड अप भी रहना है। तो मैंने इस बार मैंने क्वालिटी अटेम्प्ट में मैंने 31 लिख दिए थे, बट श्योरली एवरीवन कैन डू मोर देन 40-45। तो वो डिपेंड करता है राइटिंग स्पीड पे, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं 31 तक गया था। लेकिन अब अप्रोक्सली एवरीवन कैन गो टिल 40। तो वो चीज याद रखना, क्योंकि मुझे लगा कि ये मैंने थोड़ा बहुत 31 किया था। तो इसका मैंने क्या किया था कि मुझे पता था कि मुझे इंटरव्यू में SRT आने वाली है, तो मेंटली मैं बहुत प्रिपेयर्ड था, बहुत स्टेबल था कि कभी कुछ भी SRT आ रही है, कहीं पे भी मुझे कुछ डांट रहा है इंटरव्यूअर, तो आई विल टेक इट ऑन। तो ये चीज मैंने की थी इसके साथ। और SD तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर की थी, मैंने सर के साथ बात की थी, मैंने अपने क्वालिटीज लिखी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, सर को शेयर किया था। उसके बाद मैंने उसको पहले सेंटेंस में फॉर्म किया था, किस तरह से मेरी लाइफ चल रही है, और उसको जलब करके मैंने सर के साथ डिस्कस करके एक SD बना के रखी थी, जो वही मैंने जाने से पहले बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वही मेरे हाथ में था, ना कि कुछ और बाकी सब तो उस वक्त जो आएगा मैं उसी तरह से रिएक्ट करूंगा। मेरी प्रैक्टिस मेरे साथ थी, जस्ट ये SD का था, वो प्रिपेयर्ड था, और एवरीथिंग वाज अदर देन दैट वाज बीन प्रैक्टिस्ड बाय मी। तो ये डिफरेंस याद रखना कि यस, प्रैक्टिस क्या होता है और प्रिपरेशन क्या होता है। जब प्रैक्टिस आप करते हो तब आपकी गलत होने की चीजें बहुत कम हो जाती है, प्रिपरेशन करते हो तो देयर आर स्लाइट वेरिएशंस कैन कम, बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई कैन सी। अब मैं GTO का परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। GTO में क्या हुआ था कि GTO का प्रैक्टिस मैंने लेक्चरेट तो हर दिन किया करते थे, तो मेरे पास नॉलेज था, तो मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था कि हाँ बाबा ये कोई भी आ जाए तो चारों में से मैं कितने भी 3 मिनट बोलने हैं मुझे, मैं आराम से बोल लूंगा। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ। उसके बाद मैंने ग्रुप डिस्कशन तो हर रोज होता था, तो मेरे पास नॉलेज तो बढ़ चुका था सबका देख कि हाँ कैसे कैसे करना है। लेकिन एक चीज थी GTO के जाने से पहले, और सर ने भी मुझे सजेस्ट किया था, मैं आई एम वेरी काम, तो उसकी वजह से मैं वो बहुत आसानी से कर दिया था मैंने। वो था कि हर इंसान को इंसान की तरह देखना है, मुझे ना वहां पे जाके झगड़ा करना है ना कुछ करना है। और मेरा ग्रुप भी इतना अच्छा था कि एवरीवन वाज सेटल्ड, लाइक सब वी कॉल एवरीवन, लाइक हम लोग अपने आप को कैसे बोलते कि वी आर हार्डकोर रिपीटर्स, ओके। तो उसके वजह से हम लोग कैसे थे कि ओके वी आर सेटल्ड विद दिस, लाइक दिस प्रोसेस इज अ सबसेट ऑफ अवर लाइफ, लाइक गेटिंग रिकमेंडेड और नॉट गेटिंग रिकमेंडेड इज नॉट our way, like उनको just people who are testing us, they will recommend us if we have that, but what we have to do, we have to perform for our group was one for us, so that was very important for us, so we kept our group very good, very calm, and जब डिस्कस कोई कर रहा था, जब मैं बोल रहा था, कोई मतलब दूसरे लोग चुप बैठ रहे थे, जब मैं जो वो बात करे तो मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता था, ताकि मैं वो जो ग्रुप का एक सेंस जो होता है, मतलब जो ग्रुप से आना चाहिए, जो GTO को लगना चाहिए कि दिस ग्रुप इज वेरी गुड, तो वैसा हमने परफॉर्म किया था। लाइक इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस फॉर अस, लाइक फॉर अस इट वाज लाइक
task which were given to us, and as a group we have to solve it. मेरा एक ग्रुप का एक भी बंदा अगर पीछे रह रहा है then that was a problem for me. तो मैं हर एक चीज को देख रहा था वहां पे. तो जैसे ही ग्रुप डिस्कशंस हुए, मैंने अपने पॉइंट्स अपने हिसाब से रख दिए थे. मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को डाल के उस पॉइंट्स को बहुत पॉलिश किया था. उसके बाद फैक्ट्स फिगर्स भी डाले थे, बाकियों के पॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरह से सुने थे. इन जीटीओ में एक चीज आपको हिंट देना चाहता हूँ कि जीटीओ इज अ प्लेस वेयर यू डोंट हैव टू शो हिम एनीथिंग. आपको क्या करना है, अपना नेचुरल बिहेवियर करना है. जैसे जीटीओ जब बताता है हर एक चीज को अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि वो बताता है कि एक ग्रुप डिस्कशन जो होता है इट इज ओपन एंडेड ग्रुप डिस्कशन. व्हाट डज ओपन एंडेड ग्रुप डिस्कशन मीन? तो वहां पे जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसका कंक्लूजन कभी नहीं आना चाहिए. एज यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, आपका ओपिनियन रखो, वो अपना ओपिनियन रखेगा. तो वो एक फ्लैट पैरेलल बातें होती रहती है. तो अगर किसी का व्यू अलग आ रहा है तो इट्स ओके. तो वही चीज हमने किया. तो जीटीओ ने हमें बहुत अच्छा टाइम भी दिया था, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा जा रहा था ग्रुप डिस्कशन. उसके बाद जैसे हम जीपीई में आए, जीपीई में भी बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग वाले प्रॉब्लम्स थे, और जब अगर हार्ड भी हो रहे तो मैंने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया था. मैंने यहाँ पे जब सर से बात कर रहा था तब एक जीपीए का फॉर्मेट लिया था सर से. तो सर ने बोला था कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से करना है. तो वहां पे सर ने एक चीज बोली थी कि कभी भी एक प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करने मत जाओ. तो वहां पे मैंने भी दिमाग में डाल लिया था कि मैं बैकअप यूज करूंगा. अगर एक प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मेरे पास दूसरा और एक वे है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं दोनों तरह से कर रहा था. तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि आप जब सॉल्व करके आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हो, तब आपके पास अगर एक बंदे ने दूसरा बोल दिया कि दिस इज अ वे वी कैन सॉल्व इट, लेकिन आप क्या बोल सकते हो कि देयर इज अनदर वे वी हैव टू टैकल इट, बट द पर्सन शुड कंप्लीट दैट वर्क. लाइक जैसे कि एक चीज होती है नॉर्मली कि एक इंसान बैडली इंजर्ड है एंड द ट्रेन ट्रैक इज बीन डैमेज्ड. तो आप क्या करते हो कि बडी पेयर, कीप इन योर माइंड बडी पेयर इज इंपॉर्टेंट इन दिस. लाइक दो बंदों को भेजो, कभी भी सिंगल आदमी को कहीं नहीं भेजना है, बिकॉज इन डिफेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड बडी पेयर्स. तो अगर एक बंदा दो लोग इंजोर्ड लोगों को लेके जा रहा है, दो लोग जा रहे हैं इन्फॉर्म करने और ट्रैक के बारे में इन्फॉर्म करने जा रहे हैं क्रॉस रोड पे, ओके. तो ये दो का काम हो गया. लेकिन अगर वो ट्रेन छूट रही है वहीं से जहां पे ये लोग जा रहे हैं एक इंजोर्ड पर्सन को, तो ये एडमिट वगैरह कर देंगे, अपना काम कर देंगे. उसके बाद वो लोग जाके ट्रेन को स्टॉप कर देंगे वहां पे दूसरी तरीके से. तो आप लोगों ने क्या कर दिया कि जो बंदे रिसोर्सेज जो है वो सिटी गए एडमिट करने, उन लोगों ने ही वहां पे ट्रेन को भी लॉक कर दिया और यहाँ पे भी. तो प्रिपेयर इन दैट सिचुएशन, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. लाइक अगर वर्स्ट चीज हो रही है तो टैकल इट इन बोथ द वे, ताकि वो कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो. अगर एक तरफ अगर नहीं छूट रहा है, मतलब एक बंदा भेज रहा है वहां पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ से तो सॉल्व होना ही चाहिए. सो कीप दैट इन माइंड. एंड पीजीटी में क्या हुआ था कि पीजीटी में हमारा एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग थी सबकी कि अगर किसी से भी सॉल्व हो रहा है तो वी विल सॉल्व इट एंड रीच द गोल. हमारे लिए था टाइम एंड हमारे लिए था रीचिंग गोल एज अ टीम. तो हम लोगों ने उसी को मैनेज किया था, मेंटेन किया था. लाइक हमारा टीम ने एक चीज डिस्कस भी नहीं हुई थी, लेकिन मेंटली अंडरस्टूड थी. एवरीवन वर मैच्योर्ड इनफ कि अगर कोई भी दे रहा है वी वर टेकिंग इट, वी वर ट्राइंग एंड वी वर गोइंग, वी वर नॉट कीपिंग आवरसेल्फ इन कॉरल. तो हम अराउंड 15 मिनट्स में, जो 45 मिनट्स का टास्क होता है उसे हमें 15 to 20 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर दिया था. तो दैट वाज लाइक सरप्राइजिंग फॉर जीटीओ एंड ही वाज वेरी हैप्पी विथ अस. तो वहां पे हम लोगों ने अपना कामनेस और ग्रुप डायनामिक्स दिखा ही दिया था, और वहां पे पीजीटी में हमने कंफर्म ही कर दिया था कि वी आर द बेस्ट ग्रुप एंड एवरीवन इज हियर टू रिकमेंड इट. तो हम लोगों ने ऐसा नहीं था कि किसी के साथ कंपटीशन नहीं खेल रहे थे कि हम मुझे ही रिकमेंड होना है, तुझे नहीं होना है. एवरीवन वेर गुड एट दैट. उसके बाद हम लोग जैसे एचजीटी में गए, जैसे लेक्चरेट हुआ, लेक्चरेट में भी बहुत कामली सबको सुन रहा था मैं, बिकॉज लिसनिंग टू एवरीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट बी जीडी और वेदर इट बी एन लेक्चरेट. तो मैं अच्छी तरह से सुन रहा था सबको कामली, ताकि मेरा आराम से कॉन्फिडेंस बिल्ड गया. और मैंने दो चीजें अच्छी हुई वहां पे. मैंने 2 पॉइंट्स तो दूसरे के यूटिलाइज
यूटिलाइज किए, जो उसने बताया था और मुझे जो अच्छे लगे थे मैंने वो यूटिलाइज कर लिए थे। उसके बाद मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया था। मैंने इस बार अपना लेक्चरेट में यूज किया था, मतलब यूएस एंड चाइना रिलेशंस था। तो वहां पे मैं खुद जनरल मोटर्स में काम करता था, तो हाउ जनरल मोटर्स फेस्ड अ प्रॉब्लम इन चाइना विच इज एन यूएस कंपनी। तो ये मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था बिकॉज दिस वाज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद मैंने जो चाइना के जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, जो हमने ये टॉपिक हमने किया भी था अपने लेक्चरेट में, तो वहां पे मैंने वो यूटिलाइज कर लिया एंड फ्लुएंटली मेरा कमांड टास्क भी बहुत टफ दिया गया था और मैंने आसानी से उसे अपने नॉलेज के हिसाब से मैं किस तरह से कैंटिलीवर बना सकता हूँ, किस तरह से लॉक कर सकता हूँ, तो वो देख के मैंने किस तरह से अपना टाई कर सकता हूँ, ये सब देख के मैंने अच्छी तरह से अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 7 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे वहां पे भी परफॉर्म अच्छा कर रहा था, वो सब देख के मैंने यहाँ पर भी अच्छा कर दिया था। नाउ कमिंग टू माई इंटरव्यू, लाइक मैंने इंटरव्यू किस तरह से दिया था। जैसे आई कैन से दैट मैंने इंटरव्यू के लिए भी प्रैक्टिस किया था। सर के साथ बैठ के मैंने क्या किया था, अपना पीआईक्यू पहले भेजा था। जैसे मैंने पीआईक्यू भेजा था, सर ने उसके कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मुझे भेजे थे। तो मैंने क्या किया था, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने एज रिटन मैंने अपने पास रखा था। लेकिन एक चीज है कि कभी भी इंटरव्यू कांट बी प्लान्ड बट इट कैन बी डायरेक्टेड बाय यू, सो दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वहां पे मुझे एक चीज बता दी कि मुझे जितना बताया जाएगा मैं उसे अच्छा और एक डायनामिक आंसर दूंगा। उसके बाद जैसे मैं वो दूंगा मुझे एक चीज मिल जाएगी कि मैं कैसे पहुंच रहा हूँ वहां पे, मतलब कैसे मैं उसको टैकल कर पा रहा हूँ। और एक चीज थी कि मैंने एसआरटीज कम लिखी थी, मुझे पता था कि मुझे एसआरटीज आने वाली है लेकिन वो रियल लाइफ में आने वाली है। तो मेरा एक चीज था कि मैं अपने आप को बहुत काम और कंपोज रखूं ताकि मैं कहीं पे भी हिल ना पाऊं कि यहाँ अगर कुछ इंटरव्यूअर इंटेंशनली कर रहा है, इंटेंशनली मुझे प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उसे अपने पीआईक्यू के हिसाब से लूं, जैसे और मेरे एसडी के हिसाब से। जब कभी भी आप अपने एसडी भी लिख रहे हो या आप जब कभी भी अपना पीआईक्यू बना रहे हो, बहुत ध्यान से बनाना। उसमें ना बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको पूरा इंटरव्यू आपके पास दे देती है। और सर ने मुझे उस चीज में बहुत अच्छी तरह से गाइड किया था। लाइक अपना एसडी मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा था। लाइक मैं एक लाइवली पर्सन था, मैं हूँ लाइवली, तो मैंने लाइवली लिखा था। तो वो इंटरव्यू में मुझे एक चांस मिल गया था, अननोइंगली एक चांस मिल गया था और वो भी दिख के आया था कि इंटरव्यू मेरे साथ बहुत गुस्सा हो गया था कि मैं ओवरवेट हूँ और मतलब यू आर नॉट फिजिकली फिट टू ज्वाइन डिफेंस, इस तरह से बोला गया था। तो मैं तब स्माइल कर दिया था एंड आई वाज लाइक सर मैं पहले नहीं था एंड आई सेड द रियल थिंग कि मैं कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन पीरियड में मैं घर से काम कर रहा हूँ, तो उसके वजह से वर्क फ्रॉम होम की वजह से मैं कभी बाहर भी नहीं गया था लॉकडाउन की वजह से। और मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद अपने घर का खाना मिल रहा है तो फ्रीली खाऊंगा, तो वो एक लॉजिकल थिंग थी, मैंने वैसे ही बताया था। और मैंने एक जोक ही कर दिया था वहां पे कि आई सेड दैट वट एवर फिटनेस एंड वट एवर हाउ बल्जी आई एम इज जस्ट एंड जॉइंट एफर्ट्स ऑफ माई मदर एंड आई वुड से लॉकडाउन। तो वहां पे वो एकदम से मैंने एक लिखा था मेरे एसडी में कि मैं वीटी रिप्लाई से एक मूवमेंट्स को बहुत अच्छा लाइवली बना देता हूँ। तो वहां पे सर भी, इंटरव्यूअर सर भी हंसने लगे और ही ऑल्सो एंजॉयड माई आंसर। उसके बाद मुझे और एक एसआरटी में डाला गया था कि मैंने लिखा था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं कैप्टन था फॉर माय टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन माय कॉलेज। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि अब बता कि तेरा वन डाउन नहीं खेल रहा है, वन डाउन इज रिफ्यूजिंग टू प्ले एंड व्हाट यू विल डू। मैंने बोला कि मुझे उस सिचुएशन के हिसाब से चलना है, अगर मुझे उसकी जरूरत है तो मैं उसको कैसे भी मना के लाऊंगा और मेरा प्लेयर है वो, एज अ कैप्टन आई नो हिम बेटर, मैं उसको मना ही लूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मानेगा एंड यू कांट डू एनीथिंग। तो मैंने बोला कि देयर कुड बी एनी रीजन सो ही इज टेलिंग दैट ही विल प्ले आफ्टरवर्ड्स, तो मैं उसका साथ दूंगा और मैं उसके बाद वाले बंदे को, टू डाउन को, इतना अच्छा मोटिवेट करूंगा, इतना अच्छा सिचुएशन समझाऊंगा कि वो आराम से खेल पाएगा। तो ये एक सिचुएशन आया था। उसके बाद मैंने जैसे फार्मिंग के बारे में बोला था कि मैं हमारा फार्म भी है, तो तब उन्होंने बोला था कि व्हाट डज योर पेरेंट्स डजंट लाइक इन यू और व्हाट दे वांट टू इम्प्रूव इन यू। तो वहां पे मैंने बोला था कि
जैसे कि दे वांट मी टू बी एन मल्टीटास्किंग, एज एवरीवन्स पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू बी मल्टीटास्किंग, लाइक एजुकेशन या जॉब जो कर रहा है उसमें भी परफेक्ट रहे और उसके पास को करिकुलर एक्टिविटीज भी कर दे। जैसे कि मेरे हिसाब में मेरे लिए था कि मैं फार्मिंग भी संभालूं और मेरा जॉब भी संभालूं, तो मैंने एक लॉजिकल पार्ट दिया था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं अभी तक और मैं क्यों कैसे ट्राई करूंगा उसे। तो मैंने बोला था कि मैं जो इसका होता है एज अ डेवलपर आई एम वर्किंग विथ वन फर्म कॉल्ड TCS, तो मैंने बोला था कि वहां पे मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा दैट आई कांट टैकल इन अ स्पेसिफिक टाइम, इट इज नॉट डेस्क जॉब। मैंने सीधा बोला था कि इट इज नॉट अ डेस्क जॉब जो मुझे टाइम टू टाइम मिलेगा, उसमें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे और उसके लिए टाइम लैप्स हो सकता है। और जो फार्मिंग है वो मेरे हाथ में नहीं है, क्लाइमेट कभी भी चेंज हो सकता है और ये मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैंने वो बोलने के बाद वो एक लॉजिकल वे था, मैंने बोला था। तो उसके बाद मैंने अभी इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगा करके मैंने उसका भी सोल्यूशन सर को दिया था। जैसे कि मैंने बोला था कि अब मैं अपना जो वर्किंग स्किल है उसे मैं बहुत इतना अच्छा डेवलप कर दूंगा, क्योंकि जो मैं वर्क कर रहा हूँ मतलब एज अ डेवलपर जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ उसको मैं इतना अच्छी तरह से जान लूंगा कि मैं उसमें मुझे कम टाइम में मैं बहुत अच्छा वर्क कर पाऊंगा, तो अपने स्किल्स को बढ़ाऊंगा करके बोला था। और फार्मिंग में मैंने बोला था कि मैं एक ऐसे स्मार्ट डिसीजंस लूंगा, जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी मैंने लिखी थी अपने SG में, तो वो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी कि मैं ऐसे स्मार्ट डिसीजंस लूंगा ताकि मुझे मिनिमम एफर्ट्स लगे और आउटपुट ज्यादा आए और मैं अच्छी तरह से उसे अपने स्किल के हिसाब से और अपने मैन पावर के हिसाब से मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो वो ये एक चीज थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि आर यू हैप्पी विथ व्हाट यू आर अर्निंग एंड वेदर यू आर लाइक बिकॉज यू विल नॉट ज्वाइन डिफेंस, लाइक सीइंग यू आई विल नेवर टेक यू इन डिफेंस। उन्होंने ऐसे प्रेशर में डाल रहे थे। तो एट दैट मोमेंट आई वॉज वेरी काम। मैं स्माइल कर रहा था वैसे ही जैसे मुझे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तब मैं करता हूँ, और जब मुझे प्रेशर में डाला जाता है तब भी मैं उतना ही कंपोज था। तो वो एक चीज थी मुझे थ्रू आउट माई इंटरव्यू मुझे हेल्प की। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे लाइफ के ऊपर, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने किस तरह से अपना एजुकेशन किया है, उसके बाद मैंने किस तरह से अपना वर्किंग कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं अपना फैमिली को किस तरह से हैंडल करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस किए थे सर के साथ वही क्वेश्चंस थोड़े बहुत आए थे, थोड़ा बहुत वेरिएशंस के साथ थोड़े बहुत, बिकॉज एज अ रिपीटर आई एम गोइंग, तो मेरा इंटरव्यू विल नॉट बी एज सेम एज अ फ्रेशर विद अ सेम काइंड ऑफ लेंथी क्वेश्चंस। वहां पे मुझे क्वेश्चंस बैक टू बैक आए थे, लाइक इफ वन क्वेश्चन ही इज आस्किंग ही इज टेकिंग आउट ऑफ दैट एंड आस्किंग मोर। तो मुझे बहुत प्रेशर में डाला गया था, लेकिन मेरा था कि इट्स ओके, वॉट एवर प्रेशर कम्स टू मी आई विल टेक इट ऑन। ऐसा नहीं था कि मैं उसके साथ थोड़ा बहुत नर्वस हो जाऊं, तो मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ था पूरे अटेम्प्ट में। मेरा प्रैक्टिस बोल सकते हो या मेरा एटीट्यूड जो मैंने एक मैच्योर पर्सन जो मैं अपने लाइफ से सीखा था, जैसे कि मैं कभी एक्सपीरियंस्ड हूँ एज अ वर्किंग स्टूडेंट। सो यहाँ पे कैसे होता है कि मुझे अपने मैनेजर्स के साथ कैसे डील करना होता है, ये सब मैंने एक्सपीरियंस जो किया है उसी को मैंने वहां पे रिफ्लेक्ट किया था। नहीं कुछ बढ़िया किया था ना कुछ अलग किया था, मैंने उसको ही उतना ही कंपोज और उतना कामली किया था बस, ताकि उनको भी लग जाए कि I am perfect to be an officer and I can handle anything at any moment of time। तो ये सब किया था। तो coming to the suggestions or tips, I can see that everyone can follow। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक दिमाग में रख लेना, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग यू कैन इवन ब्रेक द स्टोन एंड दिस इज जस्ट एन SSB, दिस इज जस्ट एन प्रोसेस। व्हाट 15 क्वालिटीज दैट यू हैव, एवरीवन हैज, you have to just groom it and show it to them and you'll get recommended। तो मैं आपको एक चीज मैंने पहले जैसे अपने साइक में बोला था कि सबके नाम वगैरह ध्यान से याद रख लेना और यूटिलाइज दैट नेम्स ओनली, ओके। तो वो एक चीज है। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि आप जब SSB दे रहे हो, लाइक स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हो, तो स्पेशली मैं बोल सकता हूँ स्क्रीनिंग को बहुत सीरियस लेना। इस टाइम जब कोरोना के टाइम में स्क्रीनिंग इज नॉट जस्ट एंड लाइक मैं आराम से कर दूंगा एंड इट विल बी क्लियर, बिकॉज बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज इनटेक भी कम है। तो वो एक चीज याद रख लेना। उसके बाद अपना जब आप इसके लिए जाते हो, स्टोरी राइटिंग के लिए जाते हो, तब एक चीज रखना कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल और जितना आपके हाथ में हो
उतना ही करना. नेवर डू एनीथिंग व्हाट इज बियॉन्ड योर लिमिट्स. लाइक आपकी मैच्योरिटी क्या है. अगर आप एक बच्चे हो 12th स्टैंडर्ड के हो तो आप एक एग्जाम जब कुछ हो रहा है तो आपका प्रोजेक्ट आपके हिसाब से होना चाहिए, ना कि मैं एक बहुत बड़ा चीज करके मैं बहुत बड़ा तीर मारने जाऊं. दैट इज नॉट देयर. आप मतलब मुझे भी सर ने बोला था कि मैंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी ही की थी. मतलब मैं बहुत बड़े बड़े स्टोरीज लिखता था काइंड ऑफ फिल्मी, लेकिन मैंने बहुत इंप्रूव किया. मैंने अपने आप को बहुत कंपोज रखा उसमें. तो वो एक चीज मैं आपको एक पॉइंट याद रख के करने के लिए ध्यान रखूंगा कि मैच्योरिटी एंड योर एक्सपीरियंस, ये दो चीजें को ऐड करके अपनी स्टोरीज बना देना बहुत अच्छी और बहुत क्रिस्प और बहुत एक्शन वाली बन जाती है. बिकॉज एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ लीडर यू आर नॉट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग then it's very bad. Your actions should be very good and very practical whenever you are writing stories, because you are the person who is in that picture. So that keep in your mind. उसके बाद अगर मैं GTO का बोलूं तो GTO का एक ही चीज है कि बी अ मैन एंड बिहेव एज अ ह्यूमन बीइंग. ओके, दैट्स इट. लाइक अगर आप दूसरे के साथ, दूसरे बंदों के साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हो, इन टर्न दे विल बिहेव गुड विथ यू. और एक अच्छा कंपोज ग्रुप डायनामिक्स बना के रखो ताकि सबको रिकमेंड होना है. और यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है कि आप कोई रेस नहीं है कि इफ यू आर रनिंग फास्ट यू वांट, इफ अदर्स आर रनिंग फास्ट देन यू विल नेवर गेट रिकमेंडेड. इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग विथ योर एबिलिटी, दे आर गोइंग विथ देयर एबिलिटी. कुछ अभी मैंने 7 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए थे, कुछ लोगों ने 10 किए थे, कुछ लोगों ने SRTs मैंने कम लिखी थी, कुछ लोगों ने ज्यादा लिखी थी. लेकिन कैसे होता है कि मेरी एबिलिटी, मेरा परफेक्शन है क्वालिटी लिखना, मेरा परफेक्शन है मेरे स्पीड के हिसाब से. भले मैंने थोड़ा 1-4 SRT कम लिखे थे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, लेकिन मैं 36-40 में अटेम्प्ट करता था, लेकिन प्रेशर के वजह से थोड़े बहुत कम रह गए होंगे. बट इट इज लाइक आई कैन डू इट. और जैसे सर भी बहुत प्रैक्टिस लेते तो उसके वजह से बहुत आसानी से एवरीवन कैन डू इट. लाइक मैं भी एक नॉर्मल इंसान में ही था. तो उसके बाद ये एक हो गया. उसके बाद इंटरव्यू में बहुत काम रहना, बहुत कंपोज रहना और अलर्ट रहना. लाइक अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक लिसन, व्हाई बीइंग अ रिपीटर. लाइक मैं आया था 8th अटेम्प्ट में गया था, एक बंदा था जो 26th अटेम्प्ट था मेरे साथ. तो उन लोगों के साथ और मेरे में एक डिफरेंस मैंने क्वालिटी हम सबने एक डेवलप कर ली थी कि हमें सुनना है. वॉट एवर GTO इज टेलिंग अस, लाइक दैट इज नॉट न्यू फॉर अस, बट ऑल्सो वी हैव टू लिसन इट केयरफुली, बिकॉज दैट इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ प्रोसेस, नॉट एज एन एग्जाम. तो वो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा. और अल्टीमेटली अगर होल में बताना चाहूँ तो इसका SSB इज अ सबसेट ऑफ योर लाइफ, नॉट एन एग्जाम. कीप इन योर माइंड. तो उसको एंजॉय करना सीखो. द रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड, नॉट विथ यू. दे विल बी व्हाट दे आर and what the assessors will decide. So don't feel anything, be cool, calm, enjoy each and every step of it, and you will feel satisfied after coming from it.